Hello everyone. In this video we are going to discuss CTET previous year questions from Class 6 Geography chapter number 5 Major Domains of the Earth. This chapter basically checks your conceptual understanding. So you need to understand each and every question very carefully. The first question is, as we go up the layers of the atmosphere, what happens to pressure and the temperature? So there are 5 layers of the atmosphere. The first one is troposphere, second is stratosphere, third middle one is mesosphere, fourth is thermosphere, fifth is exosphere. It is said that whenever we move upward, pressure decreases. Highest pressure is observed at sea level, and when we move upwards, pressure decreases. So there are only two options which says pressure decreases, that is option number 2 and option number 4. Then it is said in option number 2 that temperature increases. In option number 4 it is said that the temperature varies. Option number 4 is correct, because when we move upwards we will see that sometimes temperature will increase and sometimes temperature will also decrease. So kindly remember this, that whenever we move upwards, it is the temperature which varies. Temperature does not increase or decrease, temperature varies. The next question is similar to the last one. The question is, from the following statements on air pressure, choose which is the correct one. आपको बताना है इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एयर प्रेशर के बारे में। जैसा कि हमने अभी देखा कि सी लेवल पे जो एयर प्रेशर होता है वो सबसे कम होता है, और जब हम ऊपर जाते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर आपका डिक्रीज़ होता जाता है। सो लेट अस सी द स्टेटमेंट्स. The first is saying air pressure is lowest at sea level. This is wrong because air pressure is highest at sea level. Second statement says air pressure decreases with height. This statement is correct as we have seen, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं heights पे जाते हैं तो pressure decrease होता है. Third statement says in areas having high temperature the air is cold. High temperature means summer season, गर्मी होगी बहुत ज़्यादा high temperature जब होता है like 40 to 45 के बीच में, तो air hot होती है, cold नहीं होती. Fourth statement says in areas having lower temperature like 0 to 5 degree the air gets heated and rise. No, because जहाँ पे cold season हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे कम temperature होगा वहाँ पे air heat नहीं होती. The next question is Bering Strait is a narrow stretch of shallow water that connects. This is an important question. So it is directly given in your NCERT book. Bering Strait connects two shallow waters, that is Arctic Ocean and Pacific Ocean. Now you should see this कि जो स्ट्रेट्स होती हैं वो किसको कनेक्ट करती हैं, वो ओशियंस को कनेक्ट कर रही हैं. मतलब कि जो आपकी स्ट्रेट्स होंगी वो कनेक्ट करती हैं टू वाटर बॉडीज़ को. यू शुड रिमेंबर दिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड देन बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन. लेट अस सी केयरफुली हेयर दैट आर्कटिक ओशियन ऊपर है और पैसिफिक ओशियन नीचे है. इन दोनों को कनेक्ट करने वाली है बेरिंग स्ट्रेट. आप देख सकते हो कि 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही है बेरिंग स्ट्रेट. यहाँ पे 2 कंट्रीज़ को भी कनेक्ट कर रही है, कंट्रीज़ को सेपरेट कर रही है, डैट इज़ रशिया और यूएसए. रशिया और यूएसए को अलग कर रही है बेरिंग स्ट्रेट. लेट अस सी दिस क्वेश्चन ऑन अटलांटिक ओशियन. द क्वेश्चन इज अटलांटिक ओशियन इज एस शेप्ड. इट इज़ करेक्ट. अटलांटिक ओशियन की जब आप शेप देखोगे तो वो रफली इस तरीके से होती है, तो इसको हम एस शेप्ड कह देते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. So we can easily eliminate option number C. Second statement says its coastline is smooth and straight. This is wrong because Atlantic Ocean की जो coastline है वो indented है, कहीं कहीं से उसमें डेंट है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें बहुत सारे हार्बर्स देखने को मिलते हैं. एंड इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस कैरी किया जाता है. बहुत सारे हार्बर्स हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो शिप्स जो है, बिज़नेस जो है
होता है अटलांटिक ओशन में। सो सेकेंड स्टेटमेंट वॉज इनकरेक्ट। हम सेकेंड स्टेटमेंट जहाँ पे है उन सारे ऑप्शंस को हटा देंगे एंड वी गेट योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Next question is similar to the last one. The question says there are many harbors and ports in Atlantic Ocean. क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है, झुकी हुई है कहीं कहीं से, जिसकी वजह से इजी हो जाता है वहाँ पे हार्बर्स और पोर्ट्स बनाना, और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस कैरी किया जाता है। The next question says A narrow strip of land which connects two land masses is known as। हमने अभी पीछे देखा था कि बेरिंग स्ट्रेट जो है वो टू वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही थी। सो स्ट्रेट कैन नॉट बी द आंसर। आइलैंड क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि एक ही आइलैंड कॉन्टिनेंट है हमारे पास, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। जो कोई भी बॉडी चारों ओर से पानी से सराउंडेड होती है उसको हम आइलैंड कहते हैं। गल्फ जो आपका होता है वो भी वाटर बॉडीज़ के बीच में होता है, तो गल्फ भी इसका आंसर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इस्थमस। लेट अस सी ओवर हियर। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस ऑफ पनामा जो है आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, सो यू शुड रिमेंबर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ये नैरो वो क्या है? लैंड की बॉडी है, नैरो लैंड बॉडी है जो कनेक्ट कर रही है टू लार्ज लैंड बॉडीज़ को। सो अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स टू लैंड मासेस इज नॉन एज isthmus। The next question is consider the statements A, B and C on water as a resource and choose the correct option। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से बताना है वाटर पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज वाटर कैन नाइदर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बिकॉज जो वाटर साइकिल है वो एक कॉन्टीन्यूस साइकिल है। वाटर रोटेट होकर वापस अर्थ पे आ जाता है, इसलिए जो वाटर की जो क्वांटिटी है ना ही वो इंक्रीज़ हो सकती है ना ही डिक्रीज़ हो सकती है। So option number A is correct. The second statement says only 2.7% of the earth's water is fit for human use. This statement is also correct. This statement is directly given in your NCERT notebook. The third statement says water is a renewable resource. This is true क्योंकि water जो है वो खुद ही recycle होता रहता है, तो renewable resource है। So the correct answer for this question was option number 4. The next question is which of the following spheres has living organisms including humans that are majorly affected as a result of global warming। हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो वाटर बॉडीज़ से ही सिर्फ डील करता है। बायोस्फीयर में आपकी तीनों स्फीयर्स आ जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर आपके सिर्फ लैंड मासेस से डील करता है, एटमॉस्फेयर सिर्फ आपके एयर बॉडीज़ से डील करता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि कंप्रिहेंसिव क्या है, कंप्रिहेंसिव मीन्स कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें चारों चीज़ें इंक्लूडेड हैं और तीनों चीज़ें हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर इंक्लूडेड हैं, और एक कंप्रिहेंसिव हमको आंसर दे रहा है वो है बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, और जो ह्यूमन बींग्स है वो भी मेजरली किससे अफेक्टेड है? ग्लोबल वार्मिंग से। The next question is important. The question is the Ural Mountains separates. So we should know that the Ural Mountains separate Asia and Europe. जहाँ पे एशिया और यूरोप मिलते हैं, दिस इज़ एशिया, दिस साइड इज़ यूरोप, तो इन दोनों के बीच में एक जो माउंटेन रेंज है उस माउंटेन रेंज को कहा जाता है यूराल माउंटेन रेंज। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अफ्रीका इज़ करेक्ट। आप देखना कि किस तरीके से स्टेटमेंट्स रिपीट होती हैं, तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना। यहाँ पे अफ्रीका के कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट दी हुई है कि अफ्रीका और एशिया को यूराल माउंटेन सेपरेट करते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, इट इज़ नॉट अफ्रीका एंड एशिया, इट इज़ एशिया एंड यूरोप। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज इनकरेक्ट। Second statement says a large part of Africa lies in the southern hemisphere. It is not southern hemisphere, it is the northern hemisphere.
The third statement says it is the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn passes. A very correct statement. एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, इक्वेटर 0 डिग्री, 23.5 साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास करती हैं, वो है अफ्रीका. फोर्थ, गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड ऑन दिस कॉन्टिनेंट इज रॉन्ग बिकॉज गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन एशिया. Let us see the next question. The question is, which one of the following continents is smallest in size? We have 7 continents. The biggest continent is Asia and the smallest continent is Australia. Australia is also the only continent that is surrounded by water. Only continent that is surrounded by water on all its sides. Let us see the last question of this video. The question is, India's research stations names Maitri and Dakshin Gangotri are located on which one of the following continents? So it is Antarctica. In Antarctica there are no permanent human settlements, there are only research stations. So India has 2 research stations. You can also be asked the names of research stations, so you must remember the names, that is Maitri and Dakshin Gangotri. These 2 words become important for you. I hope you liked the video and you were able to understand all of the questions. Thank you for watching.